ہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سے ادا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سے ادا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے فتنے سکون اس پہ کر دیا، خالی قدم خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات آپ کے جانے پہچانے آپ کے گھر کے، مگر اتنا ہی پہچانتے کہ جو آپ کے گھر کے ہیں، مگر ان کی شخصیت، ان کے عظمت اور بلندی کو آپ جان نہیں سمجھتے۔ کچھ ایسی باتیں جانتے ہیں جن کو مکمل نہیں بیان کر سکتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ نہ عاشق اعلیٰ حضرت داشت مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ سرکار تاج الشریعہ استاذ مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی شرف الدین صاحب قبلہ کی بارگاہ میں آئیے حضرت سے خطاب نایاب سماعت کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کر کے نعرے تکبیر کی صدا بلند کرے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار حضور مفتی اعظم ہند، فیضان سرکار تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ نعرے تکبیر، علماء اہل سنت، نعرے رسالت۔ اب آپ تمامی حضرات ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں اور الحمدللہ الذی فضل سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله. صدق الله مولانا العلي العظيم. بلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پڑھیے درود پاک. اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا ووكيلنا وكفيلنا ومولانا وملجانا. بارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گفتگو بہت مختصر کروں گا، مگر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرے بھی دل میں وہ بات اترے اور آپ حضرات کے ذہن و فکر کے اندر وہ بات اتر جائے، اور کبھی اللہ ہدایت دے دے تو عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. مگر بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ پتہ نہیں کون سے عالم صاحب یا مولوی صاحب نے آپ لوگوں کو مسئلہ بتایا ہوگا کہ جو نعت پڑھے، منقبت پڑھے، ترنم میں کہے تو اس کو لوگ خوب نوازتے ہیں، مگر جو یوں ہی تقریر کرتا ہے تو پتہ نہیں کہاں کسی نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ یہ ناجائز و حرام ہے. حالانکہ یہ بھی جائز ہے اگر آپ محبت کے ساتھ. خیر اللہ کا فضل ہے، میرے رب نے مجھے اس سے بے نیاز کیا ہے. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جہاں نعت خوانوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، وہیں ساتھ ساتھ یہ علماء کرام جو ہوتے ہیں، یہ بیان جو دیتے ہیں نا، اس کو آسان نہ سمجھیے. آج کل تو ہر کوئی اسٹیج پر کھڑا ہو جاتا ہے، مگر کیا بولتا ہے، کیا سمجھاتا ہے آپ نہیں جانتے. مگر جو ذمہ دار عالم ہوتے ہیں وہ ہزاروں صفحات کا مطالعہ کر کے پھر تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے لاتے ہیں. بہرکیف قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں آج کل ہر مجلس میلاد میں اسے پڑھا کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام.
بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، مطلب کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ اور پیارا مذہب اسلام ہے۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ہم کسی مذہب کو برا بھی نہیں کہتے، مگر اپنے مذہب سے اچھا دوسرے مذہب کو جانتے بھی نہیں۔ یہی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، اور علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ تو ہمیں برادر وطن کا بھی خیال ہے، اللہ جس کو جیسی توفیق دیتا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے، اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، یعنی اللہ ہم تجھ سے عفو کرم معافی دین و دنیا میں طلب کرتے ہیں کہ تو اس کی توفیق عطا فرما۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کون کتنا کیا کر لے رہا ہے، اللہ پر کتنا بڑا کس پر کرم ہو رہا ہے۔ عموماً ذہن یہ بن گیا ہے کہ جو دنیا میں پیسے والا ہو جائے لوگ کہتے ہیں اللہ کا اس پر بڑا کرم ہے، کسی کی دنیا میں عزت زیادہ ہو جائے لوگ کہتے ہیں بڑا کرم ہے اس پر اللہ کا، اگر کوئی اچھا بولنے لگا تو لوگ کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، مگر رب کا کرم یہ نہیں ہے۔ رب کا کرم یہ ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں جسے سجدہ کی توفیق عطا فرما، جس کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے اور دل مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں بچھا رہے، وہی کامیاب انسان ہے، وہی کامیاب مومن ہے۔ ورنہ حالات تو ایسے ہیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک مولوی صاحب تھے، پڑھے لکھے تھے۔ آج کل پڑھے لکھے کو مولوی نہیں کہتے، بلکہ جو کرتا پاجامہ ٹوپی پہن لے اسی کا نام مولوی ہے، ورنہ کل کے زمانے میں بھلے وہ ٹوپی کرتا پاجامہ پہنتا ہو، اور تاریخ یہ شاہد ہے کہ جو عوام ہوتے تھے وہ بھی سر پر عمامہ اور جسم پر جبہ پہنا کرتے تھے، ان کا اسلامی معاملہ یہ تھا۔ آج تو حالات بگڑ گئے ہیں، انگریز کے نقد ڈپ میں آج دنیا تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آنے والے زمانے کو دیکھو پیچھے کو نہ دیکھو، یہ تمام لوگوں کا کہنا ہے۔ مائک خراب ہو جائے تو مائک کا مالک کہے گا اب میری تجارت کم ہو گئی ہے، اب ذرا اچھی مائک ہم لے کر کے آتے ہیں جس سے اس کی ڈیمانڈ بڑھے، لوگ جانیں اور پہچانیں، اور میرے یہاں سے مائک لے کر کے جائیں مجھے پیسے ملے۔ آپ جب بازار میں سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے زمانے کا فریزر کچھ اور تھا، آج کی کوالٹی کچھ اور ہو چکی ہے۔ پہلے کرسیاں کسی اور طریقے سے تھیں، اب اس میں اور بناوٹ کر دی گئی ہے، نکھار پیدا کر دیا گیا ہے، تو آدمی سوچتا ہے نیا نیا تلاش کرے، نئے انداز میں دیکھے، اور اگر کوئی پرانا لے کر کے آ جائے سیدھا سا آدمی تو لوگ کہتے ہیں ابھی تم اسی پرانے زمانے میں پڑے ہو۔ تو یہ تو دنیا کی بات رہی، تو دنیا کے ہر معاملے میں نیا نیا کرو، مگر دین اسلام یہ وہی ہے جو 1400 سال پرانا دین ہے، جسے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام لے کر کے آئے تھے۔ تو دین نہ بدلنے کی کوشش کرنا، اگر نیا دین تلاش کرنے میں لگو گے تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے، اللہ کے رسول سے رشتہ کٹ جائے گا۔ اگر تمہیں بھلائی چاہتے ہو، اگر خیر خواہی چاہتے ہو، اگر خوبی چاہتے ہو تو اسی دین مصطفیٰ سے وابستہ رہنا۔ میں بتا کیا رہا تھا، حالات بڑے انگڑائیاں لے رہی ہیں۔ آج قوم مسلم کا جو حال ہے وہ ہم کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہا کرتے ہندوستان کا خزانہ ختم ہو گیا ہے، بڑی غربت آ گئی ہے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، غربت تو آئی ہے، مگر کبھی مسلمان اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکائے اور یہ اپنے دل پر غور کرے، کیا رب کے خزانے میں بھی کبھی کمی آئی ہے؟
हरगिज़ नहीं। रब का ख़जाने में कभी कमी आ ही नहीं सकती है। वो ऐसा बादशाह है कि जितने भी निकालते रहो बढ़ता रहता, उसकी कुदरत में कोई कमी नहीं, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं। तो कोशिशें अपनी करो मगर उम्मीद रब की रहमत से करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी आबाद रहेगी और आखिरत भी आबाद रहेगा। मैं बता रहा था कि एक ज़माने में एक मौलवी साहब थे। मौलवी साहब घर पे लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। अब एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, एक हफ्ता गुजरा। तो मौलवी साहब की बीवी ने कहा कि बच्चों के खाने पीने का भी तो कुछ इंतज़ाम करो, आप ये क्या कर रहे हो, लेटे हो, फिर भी नहीं मान रहे हैं। जब काफ़ी तंगी आ गई, बच्चों पर काफ़ी परेशानी आ गई घर में, तो बीवी ने कहा कि यहाँ लेटे लेटे क्या कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है, मौलवी के घर में कितना क्या होता है, कब तक वो बैठा रहेगा, कहीं ना कहीं जाना है उसे गुजारा के लिए। तो कहा तू मुझे नहीं जानती है, मैं वो हूँ कि अगर चाहूँ तो थुक से पैसा पैदा कर दूँ। तो हर कोई मान जाएगा मगर बीवी नहीं मानती किसी के लिए। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े वली, कामिल वली, मगर बीवी से नफरत रहती थी, बीवी उनको मानते ही नहीं थे। एक दिन उनके कुछ मुरीद आ गए, इतने कामिल वली थे कि लोग उसके हाथों पर मुरीद होते और जो हिदायत करते थे उसकी बुनियाद पर अमल करके खुद अल्लाह के वली हो जाते। तो चंद मुरीद आए का हजरत से उनको मुलाकात कर लेते हैं। तो दरवाजे पर दस्तक दिया तो हजरत थे नहीं, तो उनकी बीवी थी। कहा किससे मिलने आए हैं, कहा अपने पीर साहब से मिलने आए हैं। तो औरत के चेहरे बिगड़ गए। उसने कहा अच्छा वो मक्कार पीरी भी करता है, पीरी मुरीदी भी करने लगा, वो बहुत बड़ा मक्कार है, वो कहाँ पीर होगा। अब लोग बड़े परेशान हुए कि हम तो पीर साहब से मिलने आए थे। तो कहा कहाँ गए हैं, कहा जंगल में गए हैं लकड़ी लाने के लिए। तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं मगर अल्लाह का वली दिलों के राज को जानता है। हमेशा अल्लाह वाले जो अल्लाह के ये वली थे वो अपने सर पर लकड़ी का बोझ खुद लाते थे घर के लिए, मगर आज समझ गए कि मामला कुछ अलग है। तो आपने एक शेर को जंगल से पकड़ा और शेर के ऊपर अपनी लकड़ी के गट्ठर को लादा, खुद बैठ गए और आकर के दरवाजे पर पहुंचे। सारे मुरीद देख करके घबरा गए। अब बीवी ने देखा कि अच्छा मुझे पता चला कि तुमने शेर पर भी कब्जा कर रखा है। मुरीद तो सारे मान गए मगर बीवी अभी मानने के लिए तैयार नहीं। पहले कह बताना मुझे ये है कि हालात जब तारीख आप पढ़ेंगे, किताबों का मुताला करेंगे तो ऐसे ऐसे वाक़यात मिलेंगे कि जिससे बेअदली बेइंसाफ़ी का निज़ाम पैदा हो रहा था मगर अल्लाह वालों ने इंसाफ का निज़ाम कायम किया है, शरीयत का मजाज दिया है। उनदुलुस जिसका आज नाम स्पेन है, स्पेन जिसे कहते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े आलिम थे। मैंने किताबों के अंदर पढ़ा, बहुत बड़े आलिम जिनका लक़ब, जिनके नाम से उनदुलुसी कहा जाता था। बहुत बड़े अल्लाह के वली भी वहाँ गुजरे हैं। मगर जब अंग्रेज़ों ने साजिश किया कि यहाँ से इस्लाम को मिटाया कैसे जाए, इस्लाम को कैसे यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए, तो उन्होंने पहले ये तय किया कि यहाँ से पहले आलिम का खात्मा करो, इल्म दीन पढ़ने वाला कोई ना रहे, इनको दीन समझाने वाला कोई ना रहे। तो उन लोगों ने चुन चुन करके उलमा को फांसी देना शुरू किया, कत्ल गारत करना शुरू कर दिया, उलमा की मोहब्बत को लोगों के दिलों से ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो हालात ये हो गए कि उलमा ही उस सरज़मीन से नापैद हो गए, कोई आलिम नहीं। वो ज़माना जब गुजरा तो अगर किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाता तो वहाँ कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, निकाह की बात आती तो निकाह खाली कराने वाला कोई नहीं मिलता था। आज भी इसी तरह के हालात वहाँ के बने हुए हैं, जो लोग तारीख को पढ़ते हैं वो जानते हैं। तो मैं बता ये रहा था कि मौलवी साहब ने कहा मैं ऐसा कमाल का इंसान हूँ कि मैं थूक से पैसा पैदा करता हूँ। हाँ, ये बड़े तुकारी बने हैं, ये पैसा पैदा करेंगे जो बच्चों की भूख का भी ख्याल नहीं करते हैं। जाओ यहाँ से निकलो, जाओ कमा करके लाओ। मौलवी साहब जलाल में आगे ना आओ देखा ना पाओ, घर से निकले और बहुत दूर अपने शहर से बहुत बड़े शहर में चले गए और जा करके एक बहुत खूबसूरत मस्जिद को देखा।
इत्तेफाक से वो मस्जिद शियों की, शिया जो होते हैं वो अली को मानने का दावा करते हैं, कहते हैं हम पंजतन पाक से मोहब्बत करते हैं और माज़अल्लाह वो सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो कहीं आपको शिया भी मिले तो उनसे दूर रहना, उनके झांसे में ना आना। ये मौलवी साहब थे, रात में पहुँचे, दरवाजे पर बैठ गए, मस्जिद के रो रहे हैं। लोग आ गए, कहा क्या बात है? कहा मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे बच्चे भूखों मर रहे हैं, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं पढ़ लिख करके पढ़ा लिखा करके कुछ गुजारा कर दूँ। तो लोगों ने कहा अच्छा तो क्या चाहिए? कहा कोई काम दे दो मुझे यहाँ। तो कहा क्या काम करोगे आप? कहा सिर्फ मुझे खाना दो टाइम का देना और मैं आपकी मस्जिद की सफाई करूँगा, झाड़ू दूंगा, वजू खाने को साफ करूँगा, मेहराब मिंबर को साफ करता रहूँगा। लोगों ने कहा बड़ी अच्छी बात है, ये तो मुफ्त का कोई मिल गया खादिम, खिदमत ले लेते हैं। कहा ठीक है, रख लेते हैं अपनी मस्जिद में। एक हफ्ता गुजरा, मौलवी साहब फिर रोने लगे। फिर शियों ने पूछा आप क्यों रो रहे हो जनाबा, क्या मामला है? कहा मैं बड़ी कोशिश किया, मैं बड़ा परेशान हूँ कि मैं पढ़ नहीं सका, मुझे कुछ नहीं आता है पढ़ना लिखना। तो कहा इसमें परेशानी की क्या बात, आप ऐसा करो जो हमारे इमाम साहब है कायदा किताब ले आओ, ये तुमको पढ़ाते रहेंगे, पढ़ लेना। अब जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो पढ़ा, इमाम साहब ने पढ़ाया आलिफ, कह दिया आलिफ। जब कहा बा तो बा भी पढ़ लिया, कहा ता तो ता भी पढ़ लिया, यानी पढ़ते पढ़ते दाल तक पहुंच गए। तो जब दाल के बाद दाल का नंबर आया तो इमाम साहब कहते कहो दाल, तो ये बोलते जाल। फिर इमाम साहब कहते कहो दाल, ये बोल रहे हैं जाल, यानी अल्फाज की दुरुस्तगी नहीं कर पा रहे। एक हफ्ता हो गया। अब ये पूरे शहर में बात मशहूर हो गई कि अरे जो खादिम को हमने रखा था वो तो बड़ा बेवकूफ़ है, बड़ा बेअकल है, धामड़ है, बिल्कुल उससे अकल नहीं है, जहन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पौधा है, वो तो कुछ नहीं पढ़ पा रहा है। फिर एक हफ्ता गुजरा, खुशियों का शहर था, पूरे इलाके में शोहरा हो गया कि इमाम साहब पढ़ा करके थक गए, मगर इसे पढ़ना ही नहीं आ रहा है। जब 2 हफ्ते गुजर गए तो फजर की नमाज के बाद इमाम ने सलाम फेरा तो यही मौलवी साहब जो जाहिर बने हुए थे कह रहे लोगों आप लोग ठहर जाओ, आज मैं इमाम हुसैन के पास जो करबला में जो वाक़या पेश आया तो वाक़या बयान करना चाहता हूँ। अब जब ये बयान करना शुरू किया लोगों को रुला दिया, पढ़ा लिखा तो था, ये आलिम था, मौलवी था, रुला दिया लोगों को। लोग बड़े ताज्जुब हुए, पूरे शिया भी खूब रोए करबला का वाक़या सुनकर। और है भी करबला का ऐसा दर्दनाक वाक़या कि अगर बयान किया जाए, पढ़ा जाए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि शहजादा रसूल को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा गया है, हजरत अली असगर के सीने में तीर चुभा है। और जब उनकी माँ ने पूछा इमाम हुसैन से क्या बेटे को पानी पिला दिए हो, अब आराम आ गया है? तो इमाम हुसैन अपने बेटे हजरत अली असगर को गोद में लिए हुए हैं और ले करके अपनी बीवी के पास कहते हैं कि हाँ ऐसा सुला दिया है कि अब ये क़यामत के दिन ही उठेगा। सोचिए क्या खूनी मंजर था, क्या दर्दनाक वाक़यात थे। अब मौलवी साहब ने जब सुनाया पूरे शिया रो रहे हैं। जब मजलिस ख़त्म हुई तो लोगों ने कहा अच्छा ये बताओ, आप तो कहते थे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और 1-2 हफ्ते तक हमारे इमाम साहब बड़े परेशान रहे, मगर आप नहीं पढ़ पाए एक लफ्ज़ को, इतना भयानक आपको तकरीर करना कैसे आ गई, कैसे आपने ये बयान कर दिया? कहा बिल्कुल मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मगर मामला ये है कि मैं जब रात में सो रहा था, सोने की तैयारी जब किया, बिस्तर पर गया तो मैं अली अली पुकारता रहा और मैंने 1000 बार हजरत अली को पुकारा। तो शियों ने पूछा फिर क्या हुआ? तो कहा जब मैंने 1000 बार हजरत अली को पुकारा तो अली आ गए। और अली ने पूछा क्यों पुकारा है? तो मैंने कहा सरकार मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ। तो हजरत अली ने कहा अच्छा अपना मुंह खोलो, और अली ने अपना थूक मेरे मुंह में डाल दिया है। ये उसकी बरकत है कि मैं इतनी जोरदार तकरीर कर रहा हूँ, हालांकि सब झूठ बोल रहा था, तो पढ़ा लिखा हुआ था। अब शिया तो बहुत मानते अली को, उन्होंने कहा ये देखो मैं एक ज़माने से अली अली पुकार रहा हूँ,
अपना सीना पीट रहा हूँ, सीनों पर जख्म खा रहा हूँ, मगर अब तक अली नहीं आए। ये कितना खुश नसीब है कि इसने 1000 बार पुकारा, अली आ गए, और अली ने अपना थूक भी इसके मुंह में डाल दिया। तो कहा ऐसा करो कि अली ने आपके मुंह में थूक डाला है तो उस थूक से हमें भी फैज़ याद कर दो। तो मौलवी बड़ा होशियार था, उसने कहा अच्छा मैं इतना जल्दी आप लोगों की मुंह में थूक डाल दूंगा, मैंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मशक्कत की है, तब अली ने थूक मुंह में डाला है। तो कहा फिर क्या चाहिए आपको? तो कहा देखिए हर आदमी जो थूक मुंह में लेना चाहे मेरा और अली का फैज़ लेना चाहे, वो चाहे कि सबसे पहले 100 रुपया निकाल करके रख दे। 100 रुपया जो निकाल करके रखेगा उसके मुंह में थूक डालूंगा। लोगों ने कहा अरे अली का थूक मिले कहाँ, 100 रुपये की क्या कीमत है मेरे नजदीक। एक ने निकाला 100 रुपया, थूक डाल दिया, दूसरा आगे बढ़ा, थूक डाल दिया, तीसरा आगे बढ़ा, लाइन लग गई शियो। अब जब पूरा शोहरा हुआ शहर में तो अब मर्द तो मर्द, औरत कहाँ पीछे रही, औरतें भी आ गई, हर एक के हाथ में 100-100 का नोट है और उस मौलवी को दे रही है। अब तो थूकी मुंह में खत्म हो चुका, अख्तू अख्तू कर रहा है और मुंह में डालता हुआ चला जा रहा है। अब जब बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए और इकट्ठा जब कर लिया, अब रात का वक्त है, सुबह से शाम तक मामला चलता रहा। उसने सोचा कि अगर कल सुबह इन लोगों को कोई फैज़ ना मिला तो बड़ी पिटाई करेगी एशिया में। तो ऐसा करते हैं कि रात ही में यहाँ से निकल जाते हैं, सब मुलाकात ही नहीं करेंगे। पैसे का गठरी बांधा और रात ही में जाकर दरवाजे पर दस्तक दी, घर पे पहुँच गया। बीवी ने कहा कौन है? अरे कहा दरवाज़ा खोलो, मैं मौलवी साहब आ गया हूँ। अरे दरवाज़ा खोला, अब जाकर के वो गठरी रखा, कहा क्या है इसमें? कहा खोलो तो इसको। अब जब बीवी ने खोला तो उसमें पैसे, बीवी के दिमाग में नाच के कितने पैसे, पूरी गठरी है। बीवी ने कहा कहाँ से डाका डाल के लाए हो? मौलवी साहब ने कहा तू कभी नहीं मानेगी, अगर तू मुझे खाने काबा में खड़ा कर दे तो भी मैं कसम खा करके कहूँगा कि ये पैसा मैंने थूक से कमाया है जो मैं तुझे कह रहा था। तो कहने का मतलब ये, इस वाक़े को लिखने के बाद अल्लामा मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह ताला ने लिखते हैं कि अगर मौलवी बिगड़ने पे आ जाए तो शैतान का बाप बन जाता है, और अगर मौलवी संवरने पर आ जाए तो पूरी कौम को संवार दिया करता है और ऐसा निज़ाम दिया करता है। तो मौलवी हर तरह से आज दुनिया में घूमते हैं। बात वहीं आकर के रुक जाती है कि अमल और है, अकीदा और है। अगर अमल में कमी है तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह कल बख्शिश फरमा देगा, मगर अगर बहुत बड़ी दाढ़ी किसी के पास हो, रात दिन मस्जिद में पड़ा रहता हो, अकीदा अल्लाह और रसूल के खिलाफ है, या उसका अकीदा ये है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, रसूल के बाद दूसरा नबी आ सकता है, या वो ये कहे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, तो कितनी भी नमाज पढ़े, इतना भी रोजा रखे, इतना भी हज कर ले, हरदम तस्वीर ये फेरता रहे, यकीन जानो मुसलमानों जन्नत तो बहुत दूर है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं नसीब हो सकती है। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने मौलवियों के बारे में भी गौर करें कि हमें नमाज पढ़नी है तो किसके पीछे पढ़नी है, उसका अकीदा कैसा है, अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता है कि नहीं रखता है, अहले सुन्नत में से है कि नहीं है, शरीयत का मिजाज वाला है कि नहीं है। जब इन सारी चीज़ों की तहक़ीक़ कर लो फिर उसके पीछे नमाज पढ़ो, वरना तुम्हारी नमाज भी बर्बाद होगी, उल्टा गुनाह भी होगा। और अगर कहीं तुमने जानबूझ करके ये सोच समझ करके यार ये भी नमाजी है, ये भी तो कुरान पढ़ता है, ये भी तो रोज़ा रखता है, ये भी तो हज करता है, ये भी तो ज़कात देता है, तो लाओ इसके पीछे हम नमाज पढ़ लें, इसे क्यों ना मुसलमान समझे, वही ईमान तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है अन्तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें खबर भी नहीं होगी।
तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हारे दिलो दिमाग से ईमान का तोता उड़ जाएगा। इसीलिए उलमा कहते हैं अगर आज ईमान बचाना है तो आला हजरत के मसलक को दामन से पकड़ लो, मजबूती के साथ मसलक के आला हजरत के दामन को थाम लो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। और जहाँ तक आला हजरत की बात है, जैसा कि अभी जनाब ने बताया कि बिस्मिल्लाह की बरकत क्या है, बिस्मिल्लाह की अजमत क्या है। आला हजरत सिर्फ एक आलिम नहीं थे, सिर्फ एक मौलवी नहीं थे, सिर्फ एक मुफ्ती नहीं थे, सिर्फ एक शायर नहीं थे, सिर्फ एक मुनाजिर नहीं थे, बल्कि आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के वली थे। और कैसे वली थे, अगर वलायत पर गुफ्तगू की जाए ये बात लंबी हो जाएगी। सिर्फ एक वाक़या बताता हूँ, इमाम अहले सुन्नत जहाँ अल्लाह के वली थे वहाँ शरीयत पर इतना पुरजोर आपका साबित कदमी रहा करता था जिसका कोई जवाब नहीं मिलता है। आज तो हम ये देखते हैं कोई ढोंगी बाबा आ गया तो उसके झांसे में चले जाते हैं, इसने 10-20 अंगूठी पहन ली, उसके झांसे में चले गए, किसी ने नीला हरा पीला रुमाल लटका लिया, हम उसके पास दौड़ने लगते हैं और उससे अपनी जो है मन्नतें समाजत करने लगते हैं। आला हजरत की बारगाह में एक बुजुर्ग आते हैं, एक फकीर आते हैं और कहते हैं कुछ दे दो। आला हजरत ने कहा ठीक है कुछ दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा जो नहीं देगा वो बर्बाद हो जाएगा। आला हजरत ने फरमाया फकीर जुबान को संभाल करके रखो, क्या तुम शरीयत मुस्तफा के मुताबिक फकीर और दुनियावी ढोंगी हो। जलाल आ गया उसको, वो जानता नहीं था कि आला हजरत है कौन और आला हजरत की जात कौन है। बड़ा मशहूर था उस फकीर का मामला, जो कह देता हो जाया करता था। लोग बड़ा घबराते थे, बहुत डरते थे, और लोग अपने दरवाजे पर कुछ न कुछ लेकर जब सुनते फकीर आ रहा खड़े हो जाते थे, दे दिया करते थे। आला हजरत की वालदा ने अंदर से सुना कि आला हजरत बहस कर रहे, कहा बेटा इससे बहस ना करो, ये बड़ा पहुंचा हुआ फकीर है। आला हजरत ने फरमाया अम्मी जान इसे शरीयत का पासो लिहाज नहीं, वो फकीर नहीं हो सकता है। कहा बेटा बहस ना करो। कहा ठीक है अगर ये मांगता हम इसे दे देते, मगर ये कहता हमें बर्बाद कर दूंगा। क्या शरीयत मुस्तफा बर्बाद करने की बात करती है, किसी को तबाह करने की बात करती है? मुस्तफा की शरीयत तो वो है कि गिरे हुओं को उठाने के लिए आती है, मजलूमों का सहारा बन करके आती है, जो जर्रे हैं उन्हें पहाड़ बना देती है, जो कतरा उन्हें दरिया बना देती है। और ये कह रहा है बर्बाद कर देगी, कैसा फकीर है। इतना कहना था कि आला हजरत के छोटे शहजादे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अभी कदमों के बल चल रहे थे। और ये कैसे है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, अगर तस्करा करूँगा तो भी बात बड़ी लंबी हो जाएगी, मगर मुफ्ती आज़म की बात आ ही गई है तो मैं बयान करते चलूँ। फिर इस वाक़े को पूरा करता हूँ। हमारी इसी यूपी की सरजमीन है, फैजाबाद की जगह है, आज भी बादशाह मस्जिद मौजूद है। वहाँ पर जब सरकार मुफ्ती आज़म दौरा करते हुए आए तो मुरीदों की भीड़ लग गई है। कोई तो मुरीद हो रहा है, कोई दुआ करा रहा है, कोई पानी पर्दम करा रहा है, कोई तेल पर्दम करा रहा है, कोई तावीज़ ले रहा है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला जो आला हजरत के छोटे शहजादे हैं दुआ कर रहे हैं, तावीज़ दे रहे हैं। फिर मुरीद होने की बारी आ गई, लोग मुरीद होते चले जा रहे हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मुरीद कर रहे हैं। मुरीद करने का तरीका यही था, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, चुगलखोरी नहीं करेंगे, गीबत से बचेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे। ये सब कहलाने के बाद मुफ्ती आज़म कहते थे अब कहो कि मैंने अपना हाथ गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ में दिया। लोग हाथों पर मुरीद होते चले जा रहे हैं। लोग जो नसीहत मुफ्ती आज़म कर रहे हैं उसे पढ़ करके मुरीद होते चले जा रहे हैं। एक वकील साहब भी लाइन में लगे हुए थे, वो आ जाते हैं। पहले मुफ्ती आज़म ने तौबा कराया और जब वकील ने कहा कहो मैंने अपना हाथ गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ में दिया, वकील साहब खामोश हो गए। फिर मुफ्ती आज़म ने कहा कहो मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया, फिर वकील साहब खामोश है।
फिर जब सरकार मुफ्ती आजम ने कहा भाई क्यों नहीं कहते, मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, तो वकील वकील होता है, हुज्जती होता है, बहस करने वाला होता है, उसकी आदत पड़ चुकी होती है बहस करने की, कोर्ट कचहरी में बहस करते करते। उसने कहा हजरत अभी आपने तौबा कराया है और ये अहद लिया है कि हम जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, तो मैंने आपके हाथ ही पर तौबा किया है और आप खुद कह रहे हैं कि कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, तो आप कहाँ गौसे आजम है? आप तो आला हजरत के बेटे हैं, मुफ्ती आजम हिंद है, बरेली के ताजदार हैं, मैं सब कुछ मानता हूँ आपको, मगर आप गौसे आजम तो नहीं है, इनका जमाना बहुत पहले गुजर चुका है, आप भी उन्हीं के मुरीद हैं, उन्हीं के सिलसिले में मुरीद करते हैं, तो मैं झूठ कैसे बोल दूं? जब वकील ने ये कहा तो आला हजरत की उसी शहजादे को जलाल आ गया और सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने अपने सर से अमामे को उठाया और उस वकील के सर पर रख दिया। हाथ में हाथ है। अभी तक मुफ्ती आजम कहते थे कि कहो मैंने गौसे आजम के हाथ में हाथ दिया, अब मुफ्ती आजम नहीं कह रहे हैं, वो वकील कहता हुआ चला जा रहा है मैंने गौसे आजम के हाथ में हाथ दिया, मैंने गौसे आजम के हाथ में हाथ दिया, मैंने गौसे आजम के हाथ में हाथ दिया, बार बार कहता जा रहा है। मुरीद होकर के जब आगे बढ़ा, लोगों ने घेरा, वकील साहब ये क्या मामला है? अब तक आप जो है जब मुफ्ती आजम कह रहे थे कहो गौसे आजम के हाथ में हाथ दिया, आपने नहीं किया, बल्कि मुफ्ती आजम से बहस भी की, मगर ये क्या वजह है कि जब मुफ्ती आजम ने अपने अमामे को आपके सर पर रखा है मगर अब मुफ्ती आजम नहीं कह रहे हैं, तुम खुद ही कहते चले जा रहे हो गौसे आजम के हाथ में हाथ दिया, गौसे आजम के हाथ में हाथ दिया, आखिर ये क्या मामला है? तो वकील ने कहा मसला पूछो, मेरे दिल की दुनिया बदल गई है। जब तक मुफ्ती आजम के सर पर इमामत था मैं कुछ नहीं देख रहा था, इसलिए मैंने कहा कि मैं कैसे झूठ बोलूं, मगर कसम खुदा की जब मुफ्ती आजम का इमामा मेरे सर पर आना है तो मेरी आंखों ने देखा है गौसे आजम सरकार मुफ्ती आजम हिंद के शान-ए मुबारक पर जलवा फरमा है और कह रहे नादान तू नहीं जानता है, यही तो मेरा नाइब है, यही तो मेरे सिलसिले में मुरीद कर रहा है। तो जब मैंने गौसे आजम को अपनी आंखों से देख लिया है फिर कहना शुरू किया है, झूठ नहीं बोला है, ये मुफ्ती आजम की ज़ात पाक है, यही मुफ्ती आजम है। अभी बचपने का जमाना है, कदमों से चल रहे हैं, वो फकीर कह रहा दे दो वरना बर्बाद हो जाओगे। अचानक मुफ्ती आजम अपने कोठे से नीचे गिरते हैं, आंखें बंद हो जाती है। आपकी वालदा कहते बेटा अहमदुल्लाह देख लो क्या हुआ, मैं कह रही थी ना कि फकीर से ना उलझा करो, इसे कुछ दे दो। आला हजरत ने फरमाया अम्मी जान अगर शरीयत मुस्तफ़ा पर एक मुस्तफ़ा रजा नहीं हजारों मुस्तफ़ा रजा पैदा हो जाए और शरीयत के नाम पर अहमद रजा एक एक को कुर्बान कर देगा मगर शरीयत पर आँच नहीं आने देगा, शरीयत के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता है, इतना कहना था। आला हजरत सरकार अपने बेटे सरकार मुफ्ती आजम के पास गए, उठाते हैं तो सरकार मुफ्ती आजम से पूछते बेटा क्या हुआ, कोई तकलीफ तो नहीं? अपने जुब्बे को झाड़ते हुए सरकार मुफ्ती आजम चलने लगे, कहा कुछ भी नहीं वालदे जान कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस्तिकामत का आलम था सरकार आला हजरत का, शरीयत पर कैसी इस्तिकामत थी, शरीयत को कितना बरहक मानते थे। और ये वाक़या आला हजरत ने ये दर्स अपने घर से नहीं लिया था बल्कि करबला के मैदान से लिया था। करबला के अंदर इमाम हुसैन ने करामत नहीं दिखाया था, शरीयत पर इस्तिकामत दिखाई थी, वरना अगर 2300 साल के बाद उनका बेटा अजमेर में रह करके अना सागर को एक प्याले में भर ले तो सरकार इमाम हुसैन अगर इशारा कर देते तो पूरा नहरे फरात इमाम हुसैन के खेमे में आ जाता। अल्लाह ने वो शान दी थी, मगर इस्तिकामत बहुत बड़ी चीज है। आज लोग करामतों के पीछे भागा करते हैं मगर अल्लाह वालों के पास करामतें भी सरदर्द हुआ करती है। यही आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आप बारगाह में एक मियाँ साहब आया जाया करते थे जो हिसाब लगाया करते थे। आज भी आप नेट के जरिए से देखते हैं ना
जो पढ़े लिखे लोग हैं कि फला दिन बारिश होगी, फला दिन कितने % बारिश है, इसको भी नटवाला बता रहा है। मगर ये खबर कभी सच्ची भी होती है, कभी झूठी भी हो जाती है। कभी जिस दिन कहता बारिश होगी, बिल्कुल नहीं बारिश होती है, और कभी कहता आज बिल्कुल साफ रहेगा आसमान, उस दिन मौसलाधार बारिशें भी हो जाया करती है। इनका एक तखमीना है, सितारों की एक चाल होती है, उससे पहचान लिया करते हैं। तो एक मियाँ साहब आते थे जो सितारों के चाल को जानते थे। उनसे आला हजरत ने पूछा, मियाँ साहब जरा हिसाब तो लगाओ, इस महीने में बारिश कब है, किस तारीख को बारिश होगी। मियाँ साहब ने जमीन पर एक जायचा तैयार किया, नक्शा खींचा, अपना हिसाब लगाया। हजरत इस महीने में बारिश है ही नहीं, अगले महीने में कहीं जाकर के बारिश होगी। आला हजरत ने फरमाया अगर खुदा चाहे तो हो जाएगी। हजरत वो बात अलग है, मगर हिसाब तो नहीं बता रहा है, इस महीने में बारिश होगी। आला हजरत ने फरमाया अच्छा ये देखो, घड़ी की सुई लगी, दीवार घड़ी की सुई थी, दीवार पर जो घड़ी लगी थी, कहा बताओ कितने बज रहे हैं, कहा 10 बज रहे हैं। तो कहा आला हजरत ने फरमाया कि अच्छा अभी 10 बज रहे हैं ना, तो कहा हाँ। तो मियाँ साहब से आला हजरत ने फरमाया ये देखो मैं सुई को घुमाता हूँ और इसे ये देखो मैंने 12 पर कर दिया, अब ये घड़ी कितनी बजा रही है। तो उन्होंने कहा हजरत कि आपने सुई को घुमा करके 12 पे पहुंचा दिया है, वरना अगर ये अपने चाल पे सुई चलती तो फिर 2 घंटे के बाद जाकर के बजता। तो आला हजरत ने फरमाया यही शान अल्लाह रब्बुल इज्जत की है कि जो सितारे होते हैं बारिश के वो अपने चांद से चलते हैं, मगर अल्लाह चाहे तो जो सितारे कई महीनों में सफर तय करते हैं वो लम्हों में सफर को तय कर ले। इतना कहना था कि झमाझम आसमान से बारिश नाजिल होने लगी, बरसात होने लगी, सारे लोग परेशान हो गए। गोया इधर आला हजरत ने घड़ी की सुई घुमा करके जहन को साफ कर दिया, अल्लाह चाहे तो बारिश कर सकता है। उधर अल्लाह ने आला हजरत की लाज रख ली, इधर जुबान से निकला कि अल्लाह चाहे तो बारिश हो सकती है, इधर आसमान से बारिश होने लगी। इतने बड़े अल्लाह के वली थे आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यही इमाम अहले सुन्नत है। आपके पास एक साहब पहुँचते हैं, कहते हजरत मैं तो मुसलमान हूँ, हमारे सामने एक बदमज़हब है, उसकी भी पान की दुकान है, हमारे पास भी पान की दुकान है, मगर ग्राहक उसके पास ज़्यादा जाते हैं, आप कोई तावीज़ दे दें, अगर ग्राहक मेरे पास ज़्यादा आएंगे उससे मैं पैसा कमाऊंगा, तो दीन के राह में भी कुछ खर्च करूंगा। आला हजरत ने एक तावीज़ दिया और कहा इसे गले में रख देना। गला जानते ना, गला वो तिजोरी है जिसकी चाबी कभी गायब नहीं होती है लोगों से, बहुत मुश्किल से वो गायब होती है। कहा रख देना उसमें, उसने रख दिया। अब तो भीड़ लग गई, काफ़ी ग्राहक आ रहे हैं, उसने 2-4 लोगों को और रख दिया, अपने भाई को भी शामिल कर लिया, बेटा जवान हो गया तो उसे भी बैठा दिया कि ग्राहक काफ़ी आ रहे हैं, अब तो मारा मार हो रहा है। आला हजरत ने फरमाया था इसे गले में रखे रहना तावीज़ को, मगर कभी खोल के देखना नहीं। अल्लाह वालों के राज होते हैं और अल्लाह वालों के दिलों में अल्लाह ने वो ताकत दे दी, अल्लाह ताकत दे देता है कि लोगों के दिल उनकी मुट्ठी में आ जाते हैं। सरकार गौसे आज़म का फरमान है कुलूबुल मखलूक़ बियदी, यानी मखलूक के दिल जो है वो मेरी हाथों में। यही शहंशाह बगदाद है। एक मरतबा जा रहे थे सरकार गौसे आज़म जामे मस्जिद बगदाद में, जाते 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 देख रहे कोई नहीं आ रहा है। तो आपके पास खादिम थे कि मामला क्या है। जब सरकार शहंशाह बगदाद निकलते थे तो भीड़ लग जाती थी, मगर आज तो मामला ये है कोई सलाम करने नहीं आ रहा है, कोई मुलाकात करने के लिए नहीं आ रहा। ये दिल में ख्याल पैदा हुआ, पैदा होना था गौसे आज़म ने भांप लिया। फिर क्या देखते हैं जो मुरीद साथ में थे कि लोगों की इतनी भीड़ बढ़ी कि जो मुरीद थे पीछे हट गए,
उनको पीछे जाना पड़ा। उन्होंने पुकारा, या गौसे आजम करीब कर लीजिए। तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मेरी क्या गलती है, ये तो आप ही ने दिल में ख्याल किया था ना कि आज कोई मिलने वाला नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम है कि अल्लाह के मखलूक के दिल मेरी मुट्ठी में है। जब चाहता हूँ अलग हो जाते हैं, जब चाहता हूँ इकट्ठा कर लिया करता हूँ। तो अल्लाह वालों की ये शान हुआ करती है। तो सरकार आला हजरत ने जब तावीज़ दिया, बड़ी भीड़ होने लगी। कह दिया था कि इसे खोल करके देखना नहीं तावीज़ को कभी। मगर एक ज़माना जब गुजर गया तो बेटे के दिल में ख्याल आया कि आखिर अहमद रजा ने क्या दिया है इसमें, कितनी भीड़ लगी हुई है। इससे पहले भीड़ नहीं थी, पूरा गल्ला पैसे से भर जाया करता है। लोग आते हैं, वक्त नहीं मिलता है पान बनाते बनाते। तो जब उसने खोल करके देखा तो आजकल का कोई बाबा होता तो बड़ी सारी तावीज़ लिखता, बड़ी सारी दुआएं लिखता, फिर भी वो असर नहीं। मगर मेरे इमाम ने लिख दिया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने के बाद कहा, ऐ मुसलमानों, इसकी दुकान से पान खाया करो। नीचे लिख दिया फ़कत अहमद रज़ा खान बरेलवी, यानी बिस्मिल्लाह लिखा। नीचे मुसलमानों से अपील की, हालांकि लाउड स्पीकर लेकर अपील नहीं किया था, दिली तौर पर ऐसा अपील किया कि इतनी भीड़ लग जाती थी। तो ये बिस्मिल्लाह की बरकत और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो ताकत दी थी आला हजरत इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, अपील कर दिया है। सारे मुसलमान उसी की दुकान पर आ रहे हैं। शान है बुजुर्गों की। आओ ज़रा हिंदुस्तान के राजा सरकार गरीब नवाज के जो मुरीद है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियारी काकी की शान मुलाहजा करो कि ऐसे अल्लाह के वली है कि ये शहजादे थे, मगर ये भी सरकार गरीब नवाज के साथ हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए। शायद आप लोग तभी जानते होंगे जब सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए हैं तो क्या शान थी, और सरकार गरीब नवाज जब पैदा हुए हैं तो उस वक्त की शान क्या थी। सरकार गरीब नवाज की पैदाइश वहीं की है जहाँ पर गौसे आज़म की पैदाइश, उसी शहर के रहने वाले हैं। और क्या शान थी गरीब नवाज की पैदाइश की। आज हम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाते हैं मुकम्मल तौर से। उस ज़माने में जो सादाते किराम का मोहल्ला था, जो इलाका था, वो 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते ही पढ़ते थे, साथ में तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करते थे। जिस दिन सरकार गरीब नवाज की विलादत हुई तो एक साहब उठे कि लाओ तहज्जुद की नमाज अदा करें। तो देखा काफ़ी उजाला है, मस्जिद तरफ पढ़ते हैं तो देखते हैं कि और लोग आ गए हैं, और लोग जमा हो रहे हैं मस्जिद में। आज तो लगता वक्त निकल गया, फजर का वक्त आ गया है। इस तरह घड़ी का ज़माना तो था नहीं कि अब 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए। एक सितारों की चाल से अंदाज़ा लगा लिया करते थे आसमान की देख करके आसमान को कि अब कितना वक्त हुआ है। तो ये सारे सादात इकट्ठा हो रहे हैं और कहने लगता है कि आज तहज्जुद का वक्त गुजर गया, इतना उजाला, इतना उजाला। फिर एक और सैयद साहब दौड़ते हुए आते हैं, कहते हैं नहीं नहीं अभी वक्त गुजरा नहीं है। वो देखो जो गरीब नवाज का घर है, उनके घर पे आसमान से एक नूरानी किंदील रोशन है, ये उसका उजाला है, ये दिन का उजाला नहीं है, ये सुबह का उजाला नहीं है। लोगों ने कहा चलो पता लगाया जाए आखिर उनके घर में ऐसी रोशनी की क्यों है। जब लोग सरकार गरीब नवाज के वालिद के पास पहुंचते हैं, आवाज देते हैं, कहते हैं हजरत ये क्या मामला है, आपके घर में आसमान से रोशनी उतर रही है। कहा मुझे भी नहीं पता, मगर इतना मालूम है कि आज मेरे घर में मेरा बेटा पैदा हुआ है, उसके पैदाइशी से रोशनी पैदा हो गई है, और मैं कुछ नहीं जानता। तो गरीब नवाज का घर था। जब गरीब नवाज पैदा हुए हैं, इस शान के साथ पैदा होते हैं, पूरा घर रोशन हो गया है, पूरा इलाका रोशन हो गया है। वही गरीब नवाज हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग करते हुए आते हैं तो अजमेर में ही ठहर जाते हैं, बल्कि सबसे पहले आते आते दिल्ली में आप ठहरते हैं। दिल्ली में जब ठहर जाते हैं वहीं पर कुतुबुद्दीन बुख्तियारी काकी भी है जो अल्लाह के वली है और एक शहजादे हैं, बादशाह के बेटे थे, मगर गरीब नवाज के मुरीद हो गए हैं। और जब मुरीद हो गए थे तो कहा गरीब नवाज मुइनुद्दीन मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ,
आपके साथ ही में रहता हूँ। गरीब नवाज ने फरमाया, बेटा कुतुबुद्दीन, मैं तुम्हें दिल्ली सौंप रहा हूँ। यहाँ तुम देखो, मैं अजमेर जाता हूँ, वहाँ मैं कमान को संभालता हूँ। यहाँ तुम दीन की खिदमत करो, वहाँ से मैं इस्लाम की तबलीग करता हूँ। मान गए तो कुतुबुद्दीन ने फरमाया, ऐ मेरे पीर, मैं आपके बगैर कैसे रह पाऊंगा? तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, बेटा कुतुबुद्दीन, जब तुम मुझे आवाज दोगे दिल्ली से, मैं अजमेर से तुम्हारे पास पहुंच जाया करूंगा। घबराओ नहीं, फिक्र ना करो। अल्लाह अकबर। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अल्लाह ने ऐसा उरूज दिया, ऐसा कमाल दिया। उस वक्त का बादशाह इल्तमश भी आपका मुरीद हो गया, बड़े बड़े लोग मुरीद हो गए। जिस रास्ते से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निकलते थे, लोग खड़े हो जाते थे, औरतें घरों में घुस जाती थी कि अल्लाह का वली आ रहा है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की अब शान हो गई। तो अब जाहिर सी बात है, काफिरों को बात चुभने लगी। काफिरों ने एक मीटिंग तैयार किया, ये देखो एक बाबा आया है, बादशाह भी इसका मुरीद हो गया है। बड़े बड़े लोग इसके फंदे में फंसते हुए चले जा रहे हैं, लोग इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं। यहाँ पर कुफ्र कमजोर होता जा रहा है, इसको कैसे बदनाम किया जाए? तो एक साजिश रचा, एक तैयारी की। कहा किसी कलमा पढ़ने वाले को इसके पास भेजो और कलमा पढ़ने वालों ही को खरीदो, क्योंकि हमारी बात तो मानी नहीं जाएगी। तो तारीख ये बताती है, कलमा पढ़ने वाले हमेशा बिकते रहे हैं। अगर ये ना बिके, सच्चाई पर आ जाए, तो ऐ लोगों, मुसलमान कभी खतरे में नहीं था, ना इस्लाम खतरे में था, और आप खतरे में है। क्यों खतरे में है? हमारे अंदर इस्लाम की तालीम नहीं रह गई है। मुस्तफ़ा जान रहमत का दर से मोहब्बत खत्म हो गया है, इसलिए हम खतरे में पड़ चुके हैं। कहा किसी को इसके पास भेजा जाए। एक बेटिंग किया काफिरों ने, जो वहाँ के मारवाड़ी थे, मालदार थे, बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए, 4 कलमा पढ़ने वालों को खरीदा और 1 कलमा पढ़ने वाले को खरीद लिया, और कहा तू ऐसा करना कि इन पर इल्जाम लगाना, इन पर इल्जाम लगा देना और बादशाह के दरबार में शिकायत करना। बादशाह का अदल इंसाफ बहुत मशहूर है। अब हम देखते हैं ये मुसलमानों का बादशाह अपने पीर के खिलाफ कैसे अदल इंसाफ का कायम कर पाएगा? ये कैसे रहेगा, कैसे चलेगा? फिर मुसलमानों को बदनाम करने का मामला पेश आ जाएगा, बड़ी आसानी के साथ जो इस्लाम कमजोर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। एक औरत इसी लिहाज से बादशाह का दरबार लगा हुआ है, लोगों को इंसाफ मिल रहा है, लोगों की फरियादें सुनी जा रही है, गरीब आ रहे हैं उनको सहारा दिया जा रहा है, यतीम आ रहे हैं तो उस बादशाह के दरबार में उनको सहारा दिया जा रहा है, जो परेशान हाल आ रहा है इसकी परेशानी को दूर किया जा रहा है, जो मजलूम आ रहा है उसकी फरियाद सुनी जा रही है। इतने में एक कोने से आवाज आती है रोने की। सन्नाटा छा गया। बादशाह ने कहा देखो कौन रो रही है? आप करीब आ जाओ। वो करीब आ जाती है और धाड़े मार करके रोना शुरू करती है। कहती बादशाह मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत की खिलवाड़ बन चुकी है। कहा आखिर मेरी बादशाहत में ऐसा है कौन? तू बता तो तेरे साथ क्या जुल्म हुआ है? कहा एक शख्स ने मुझे बीवी बना करके रखा और ये देखो उसी के नुत्फे से मेरे पेट में बच्चा है, मगर अब वो इनकार कर रहा है। तो कहा वो कौन है ऐसा? तू बता तो गर्दन मार दी जाएगी। ये बादशाह इल्तमश की अदालत है, इस्लाम के मुताबिक यहाँ फैसला होता है, यहाँ कानून इस्लाम चलता है। उस औरत ने कहा बादशाह जरा हौसला रखना, हिम्मत रखना। ये कहकर फिर रोने लगती है, झाड़े मार रही है, कपड़े फाड़ने लगी है। बादशाह कहता ठहर जा औरत, तू बता आखिर कौन है वो, कैसा है वो, किसने तुझ पर ये जुल्म किया है, उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो उसने कहा बादशाह तुम सुन नहीं पाओगे और तुम ऐसा कर नहीं पाओगे। तो बादशाह ने कहा बता तो आखिर वो कौन है? तो औरत ने कहा बादशाह जिसे तुम अपना पीर कहते हो और पूरे दिल्ली वाले जिसके कदमों पर अपना सर रखते हैं वही कुतुबुद्दीन है। इतना सुनना था बादशाह के होश आवाज हो गए, परेशान हो गया बादशाह। कहा भी औरत तेरी गर्दन काट दी जाएगी, तू उनके बारे में ऐसी कहती है? तो कहा मैं कहना रही थी कि जब तुम्हारे पीर की बात आएगी तुम खामोश हो जाओगे। तो बादशाह ने दरबारियों में से किसी को भेजा, कहा जाओ हजरत के पास,
और ये बता दो कि ऐसा ऐसा आपके खिलाफ शिकायत पहुंची है। बादशाह बड़ा परेशान हो गया, कहता या अल्लाह, जिनकी बुनियाद पर तूने मुझे इज्जत दी, इतना कमाल दिया, आज उनके ताल्लुक से ये औरत ऐसी बात कह रही है। इससे पहले क़यामत क्यों नहीं आ जाती कि मैं रहता ही नहीं। अल्लाह अकबर। जब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बुलाया गया, सफ़ेद दाढ़ी है, हाथों में लाठी है, बड़ी मुश्किल के साथ हजरत दरबार में आ रहे हैं। बादशाह है, वजीर है, रोसा है, बैठे हुए हैं। जब देखा कि हजरत तशरीफ ला रहे हैं तो खड़ा होना चाहा, तो हजरत ने फरमाया नहीं नहीं ठहर जाओ, आज मैं पीर बन करके नहीं आया हूँ, आज तो मैं मुजरिम बन करके आया हूँ। जब सारी बातें ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से अर्ज की गई तो हजरत ने फरमाया बादशाह तू क्या मुझे एक रात की मोहलत नहीं देता। तो हजरत बिल्कुल मोहलत देता हूँ, मगर आपको इस जुर्म की सफाई तो पेश करनी पड़ेगी। कहा हाँ मैं ज़रूर पेश करूँगा, मगर एक रात की मुझे तो मोहलत दे दे। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मोहलत लेकर के जब चले गए, रात में अल्लाह की बारगाह में रोते हैं, मौला क्या इसी दिन के लिए रखा था। और अपने पीर गरीब नवाज अजमेर मोहल्ला की जानिब मुँह करते और फरमाते हैं मेरे पीर गरीब नवाज क्या इसीलिए मुझे दिल्ली में छोड़ करके गए थे। जमाने में रुस्वा होने के लिए, इतनी इज्जतें पाने के बाद दीन का क्या मामला होगा, इस्लाम पर कितने हर्फ आएंगे, लोग कैसी कीचड़े उछालेंगे, कुफ्फार कितने खुश होंगे, मुसलमानों को शर्मिंदा करेंगे। क्या इसीलिए आप मुझे छोड़कर चले गए थे। ऐ गरीब नवाज अब करम करो, आ जाओ। सरकारी गरीब नवाज की रूहानियत ने जवाब दिया था, बेटा कुतुबुद्दीन तुम कल पहुंच जाना बादशाह की दरबार में, और ये तुम्हारा पीर भी हाजिर हो जाएगा, वही पर इंसाफ जो होना होगा होगा। अल्लाह अकबर। रात जैसे तैसे गुजर गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दूसरा दिन आ गया तो सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने फरमाया बादशाह मैंने अपने पीर ख्वाजा गरीब नवाज को आवाज़ दी है, उन्होंने वादा किया है आने का, वो आ जाएंगे तो फैसला होगा। कहा ठीक है, अच्छा काम हो तो लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, मगर इस तरह से मामला हो जाए ना, किसी मौलवी का हो, किसी फकीर का हो, किसी पीर का हो, तो बेगाने अपने भी झांक झांक करके देखना शुरू कर देते। देखते अब क्या होता है, क्या फैसला होता है। लोगों की भीड़ इकट्ठा है और दुनिया ये देखना चाहती है कि आज बादशाह क्या फैसला करेगा अपने पीर के बारे में। इतना सख्त निजाम लगा हुआ है पीर पर, औरत दाड़े मार मार कर रो रही है और निजाम बनाया है कि इस्लाम के मुताबिक क्या फैसला होता है। आज देखते बादशाह कैसा फैसला करता है। सुबह से शाम तक हो जाती है, शोहर का वक्त हो गया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने नमाज पढ़ ली, अभी ख्वाजा गरीब नवाज नहीं आए हैं, असर का वक्त हो जाता है, नमाज पढ़ लिया है, अभी गरीब नवाज नहीं आए हैं, मगरिब का वक्त हो गया, अब आखिरी फैसले का वक्त है। लोग परेशान हैं कि कब फैसला होगा, क्या होगा। लगता है कुतुबुद्दीन झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। लोगों का शक और बढ़ता जा रहा है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। सरकार गरीब नवाज को आने में ताख़ीर हो रही है, मगर सरकार गरीब नवाज ने जब कहा था बेटा तुम फिक्र ना करना मैं आ जाऊंगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया कि अच्छा चलो मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, इसके बाद जो फैसला करना होगा कर लेना। जब नमाज पढ़ रहे हैं, कुतुबुद्दीन ने जब सलाम फेरा है तो देख रहे हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज की 2 रकत नमाज छूट गई थी, तीसरी रकत में शामिल हो गए थे और ख्वाजा गरीब नवाज नमाज अदा कर रहे हैं। कहाँ से चले हैं? अजमेर से चले हैं। प्लेन का ज़माना नहीं था, ट्रेन का ज़माना नहीं था, मोटर का ज़माना नहीं था, कार का ज़माना नहीं था। पैदल सफ़र करके गरीब नवाज अजमेर से दिल्ली पहुँच जाते हैं और जब सलाम फेर लेते हैं गरीब नवाज तो कहते बेटा कुतुबुद्दीन कहो क्या मामला है। हजरत
ऐसा ऐसा इल्जाम आपके मुरीद पर लगाया गया है, इसे आपने दिल्ली का बादशाह बनाया था, इसे दिल्ली में इस्लाम की खिदमत के लिए मामूर किया था, इतना बड़ा इल्जाम लगा है, क्या होगा इस्लाम का? बहुत सारे लोग इस्लाम ला चुके हैं, इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, बादशाह खुद इस्लाम कबूल कर चुका है और बादशाह मेरे हाथों पर मुरीद हो चुका है। सरकार क्या होगा? गरीब नवाज ने फरमाया, कौन है वो औरत बदकार कि तुम पर इल्जाम लगा रही, जरा सामने करो। अब औरत को जब सामने लाया गया तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, क्या मामला है? कहा, बाबा यही मामला है, एक बूढ़ा शख्स इसे आप अपना मुरीद कह रहे हो, इसे अपना बेटा कह रहे हो, इसने मेरे साथ बदफेली की है और इसी के नुत्फे से मेरे पेट में बच्चा जन्म ले रहा है। कहा, अच्छा तू सच कह रही है? कहा, हाँ हाँ मैं सच कह रही हूँ। कहा, गवाह पेश करो। 4 कलमा पढ़ने वालों को जो मुसलमान बिक गए थे उनको गवाही में पेश कर दिया। अब इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती थी? गरीब नवाज ने उस औरत की पेट की जानिब इशारा करते हुए फरमाया, ऐ पेट में पलने वाला बच्चा, तू बता दे तू किसके नुत्फे से है? क्या तू फतहुद्दीन के नुत्फे से है या किसी और के नुत्फे से है? पेट से बच्चा आवाज देता है, ऐ गरीब नवाज माफ रखना, ये मेरी माँ बदकारा है, मैं किसी और का हूँ। फतहुद्दीन तो बिल्कुल पाको साफ है, उनका कोई मामला ही नहीं है यहाँ पर। अल्लाह अकबर। जब गरीब नवाज ने इस आवाज को लोगों को सुना दिया तो कितनी अहमियत बढ़ गई फतहुद्दीन की, और लोग अपनी मुंह खा करके रह गए, सारे कुफ्फार जलते रहे, हाथ मारते रहे। तो ये ना समझना इस्लाम का काम करने वालों पर इल्जाम नहीं लगेगा, इल्जाम लगेगा मगर अल्लाह उनका साथ देता है, अल्लाह उनका हामी व नासिर होता है। इल्तमश बादशाह को ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कैसा बनाया था? आप लोगों ने वाकया सुना होगा, सुना ही होगा, किसी ने पढ़ा भी होगा कि जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन का इंतकाल हो गया तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने वसीयत की थी कि मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जो तौबा करने के बाद फिर कभी कोई बदकारी ना की हो, जो तौबा करने के बाद 5 वक्त की नमाज ना कज़ा की हो कभी। यही नहीं, जिसकी तहज्जुद की नमाज ना कज़ा हुई हो वो पढ़ाएगा। जनाजा तैयार है, हजारों है, उलमा भी है, सूफिया भी है, फर्रा भी है, बड़े दाढ़ी वाले भी है, नमाजी भी है, हाजी भी है, गाजी भी है। जब यह ऐलान हुआ तो सभी के सर झुक गए। कौन ऐसा पाबंद था जिसकी तहज्जुद की नमाज ना छूटी हो कभी? जब से तौबा कर लिया हो तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मुरीद जो बादशाह इल्तमश था वो 7वीं सफ में खड़ा हुआ था, वो वहां से सर झुका करके निकला और आगे बढ़ा। कहा, बाबा मैंने बड़ी पर्दगी के साथ, तन्हाई के साथ, खामोशी के साथ ये मैंने इबादत की थी, जाते जाते आपने इस राज को फाश कर दिया था। तो उस जमाने के बादशाह ऐसे हुआ करते थे तो निजाम अच्छा हुआ करता था। जब बादशाह बिगड़ जाता है